Good morning, everyone. We were doing ratio analysis, right? And we understood two ratios in the previous lecture. First ratio was the current ratio, which is current assets divided by current liabilities. And another ratio is a quick ratio or liquid ratio or acid test ratio. It is quick assets divided by quick liabilities. What do you mean by quick assets? Assets, current assets other than stock, prepaid expense and advance tax. And what do you mean by quick liabilities? Quick liabilities are the current liabilities other than bank overdraft and pre-received income. Okay? Then let's continue with other ratios. Okay? First, ध्यान देना, other ratios. अब थोड़ा ही चैप्टर बाकी है, ज्यादा कुछ नहीं उसमें. ओके. Then इनकम स्टेटमेंट रेशियो, P&L अकाउंट रेशियो लिख देना. सो हमने बैलेंस शीट के दो रेशियोज किए, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो. नाउ बी, इनकम स्टेटमेंट रेशियोज. There are four ratios that we have to understand. ओके, पहले इनकम स्टेटमेंट समझ लेना. ठीक है. व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट? ट्रेडिंग अकाउंट, try to understand, this is trading account. The upper portion is trading account. Debit paid to opening stock, to net purchases after deducting purchase returns, debit paid to direct expenses, all other direct expenses, credit paid by net sales, by closing stock. Net sales is gross sales minus sales return, and you will get to gross profit. Then comes P&L account. यहां पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट brought down, ठीक है. ध्यान देना, यहां तक तो सबको पता है. तो सबसे पहले रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ठीक है. देन सबसे पहले रेशियो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. व्हाट इज जीपी रेशियो? जीपी रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स. इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. एकदम सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है. इट इज नेट it is gross profit divided by net sales. This is the first ratio. Then आगे क्या लिखा है ध्यान देना, मैं लिख के दूंगा, try to understand.
The ratio measures, gross profit ratio measure relationship between the gross profit and net sales. It is calculated to measure the efficiency of the production department. It is usually expressed in the percentage. What percentage में 20%, 30%, 50% like that. What is gross profit? Net sales minus COGS. So, what is COGS? This is COGS. What is COGS? Opening stock plus net purchases plus direct expenses minus closing stock is cost of goods sold. Try to understand. Net sales say if you deduct COGS, you will get gross profit. You will get gross profit. Okay, then क्या लिखा है ध्यान देना. Therefore, gross profit is equal to net sales minus COGS. What is COGS? Opening stock plus purchases plus direct expense minus closing stock. So gross profit is equal to net sales minus COGS. यही लिखा है यहाँ पे. आगे अरे वो डबल लिखा है उन्होंने, ठीक है. आगे net sales is equal to sales minus sales return. GP ratio is gross profit divided by net sales multiplied by 100. आगे expenses may be divided into two parts: operating expense and non-operating expense. What are the operating expense? Expenses which are incurred by the businesses for routine operation of the businesses are called as operating expenses. For example, office and admin expense, selling and distribution expense, etc. Operating profit is gross profit minus operating expense. मैं लिख के दूंगा, don't worry. What are the non-operating expenses? Includes loss on sale of fixed assets, loss by fire, goodwill return of depreciation, discount on issue of shares and debentures, preliminary expenses, etc. Operating profit ratio shows the operational efficiency of the business. Okay, net profit ratio दिया हमने, net profit to net sales, net profit ratio वो मैं बोलता हूँ, don't worry, उसका कोई टेंशन नहीं. अलग अलग इसमें लिखा है उन्होंने. Profit is equal to operating profit plus non-operating income minus non-operating expenses. What is non-operating income? It includes income from non-trading activities, interest received, dividend received, compensation received, refund received, profit on sale of fixed asset and investment. Such are right after tax. Okay, लिखो यहाँ पे. 2. Operating expenses. Operating expense, office and admin expense, selling and distribution expense, and third, finance cost. जब आप ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे, यू विल गेट टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट. यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. मैं P&L को डिवाइड कर रहा हूं दो चीजों में आपको फॉर्मूला समझाने के लिए. आगे फिर यहां पे आएगा बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट. P&L को एक्सटेंड कर रहा हूं, नथिंग एल्स. कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन. ऑपरेटिंग प्रॉफिट. फिर बाय अदर इनकम्स, जिसको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स.
एग्जाम्पल, interest received, dividend received, profit on sale of assets, claim received, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हो सकता है या अदर कोई क्लेम रिसीव्ड, रिफंड रिसीव्ड। एग्जाम्पल, जस्ट मैं वो उन्होंने जो लिस्ट दी ना वही मैं बोल रहा हूं बिकॉज बोर्ड्स के लिए वो इंपॉर्टेंट है। देन आई विल डिडक्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसमें लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, गुडविल रिटर्न ऑफ, discount on issue of debentures or shares, written off, ये सब माइनस करने के बाद यू विल गेट टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मैंने पी&एल को डिवाइड किया दो, इसमें पी&एल को डिवाइड किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढा और फिर मैंने नेट प्रॉफिट ढूंढा। देन बाय नेट प्रॉफिट, इसको मैं आगे लेके जा रहा हूं। फॉर्मूला करने में इजी होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टू प्रोविजन फॉर टैक्स, माइनस करोगे यू विल गेट टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लिख लेना एंड देन आई विल गो थ्रू द फॉर्मूलाज। लिख लेना, ठीक से लिखना। ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, पहले ट्रेडिंग लिखो जल्दी। नेट, फिर ये आपका पी&एल को मैंने 3 में डिवाइड किया है, जानबूझ के किया है, ठीक से लिखो। So what is operating profit? Gross profit minus operating expenses is operating profit. What is net profit? Operating profit plus non-operating income minus non-operating expense is net profit. समझ में आ रहा है?
हम क्या बोलते थे? नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम्स माइनस अदर एक्सपेंस इज नेट प्रॉफिट। उस अदर इनकम एंड अदर एक्सपेंस को 2 में डिवाइड करो, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, नथिंग एल्स। जल्दी करो, होने का यस लिखो सो दैट आई कैन मूव अहेड। जल्दी। एंड दिस इज द लास्ट, ये लास्ट पार्ट है। ओके देन अब एक एक रेशियो लिखा जाएगा। फर्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बहुत सिंपल रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में होता है। शोज प्रोडक्शन इफिशिएंसी ऑफ द फर्म। ऑफ फर्म। सेकंड, नेट प्रॉफिट रेशियो। ऑप्शन ए, अगर आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हो तो रेशियो रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से लेते हो तो रेशियो इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ठीक है, इट्स योर चॉइस, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी होगी वैसे लेंगे, राइट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आपकी क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से लेगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100, और ऑप्शन बी, if they have given you profit after tax, so your formula becomes net profit after tax divided by net sales, as simple as that। देखिए जीपी रेशियो में क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। एनपी रेशियो में क्या है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। दोनों रेशियो ऑलमोस्ट सेम है। जीपी रेशियो में जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स, एनपी रेशियो में एनपी डिवाइडेड बाय सेल्स। क्या लिखा है देखो, यस। नेट प्रॉफिट रेशियो शोज ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। लिखो, नेट प्रॉफिट रेशियो शोज ओवरऑल, इट शोज ओवरऑल इफिशिएंसी, ओवरऑल जीपी प्रोडक्शन इफिशिएंसी दिखाता है, एनपी ओवरऑल इफिशिएंसी दिखाता है। ठीक है, देन थर्ड, व्हाट इज COGS, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस
डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. Cost of goods sold. What is GP? Net sales minus COGS. What is operating profit? ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहता है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इट इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस. सो कौन से एक्सपेंस हमें माइनस नहीं करने, हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नहीं करने. मतलब कौन से? ग्रॉस प्रॉफिट से डोंट माइनस लॉस बाय फायर, don't minus loss by theft, don't minus loss on sale of fixed assets, don't minus goodwill written off if any, don't minus discount written off, right, on issue of shares and issue of debentures. Discount allowed, वो allowed ये चल जाएगा, but discount on issue of shares and debentures अगर write off होता है P&L में तो वो माइनस मत करो. ठीक है. सो बाकी सब एक्सपेंस माइनस करो ग्रॉस प्रॉफिट से, इनडायरेक्ट एक्सपेंस से माइनस करो, you will get operating profit. So आगे क्या लिखा है पढ़ो. Then therefore operating profit ratio. What is operating profit ratio? Operating profit ratio indicates relationship between the operating profit and net sales. It usually expressed in the form of percentage. जनरली जो P&L के रेशियोज होते हैं ना, इनकम स्टेटमेंट के रेशियो, GP ratio, net profit ratio, operating profit ratio is always in the percentage and also known as net operating profit ratio. Operating profit ratio and net operating profit ratio. Operating profit divided by net sales, where operating profit is equal to gross profit minus operating expense, net sales is equal to sales minus returns. ठीक है. सो लिखो यार, अब थर्ड रेशियो मिल गया. राइट. Fifth, operating profit ratio. नेट और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो बोलते हैं बोलो. ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. हाउ टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट? यहां पे लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. देखो दो तरीके से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढ सकते हो. कैसे ध्यान देना, यू कैन फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाइक दिस. ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इज ऑल्सो ग्रॉस प्रॉफिट. उल्टा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, आपकी मर्जी है. देयर आर टू वेज ऑफ फाइंडिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट. फर्स्ट, नॉर्मल वे, ऊपर से नीचे. लाइक मैं बोलूंगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. दिस इज वन ऑप्शन. और सेकंड ऑप्शन नीचे से ऊपर, मतलब उल्टा करना होता है. क्या? नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस हुए होंगे नेट प्रॉफिट ढूंढने के लिए, तो वो ऐड करो नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ये ऐड हुए होते हैं टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, तो उसको माइनस करो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, आपको मिल जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ठीक है. अगर आपका फॉर्मेट दिमाग में है, आप खुद होके फॉर्मुलेस लिख सकते हो आगे. ठीक है. नेक्स्ट, सो ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. देखो जीपी रेशियो, जीपी डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. एनपी रेशियो, एनपी डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. नेक्स्ट. ठीक है. What is operating ratio? Operating profit ratio different and operating ratio different. ये expense ratio.
बाकी प्रॉफिट के रेशियो थे, ग्रॉस प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट था. दिस इज ऑपरेटिंग रेशियो, दिस इज एक्सपेंस रेशियो, दिस इज एक्सपेंस रेशियो. It expresses the relationship between total operating cost. टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं बोल रहे, ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल रहे, मतलब सीओजीएस, ट्रेडिंग अकाउंट से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. देखो ऑपरेटिंग उन्होंने लिखा है, ध्यान देना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज योर टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट and net sales and expressed in the percentage. So what is the formula? Likho. Number 6, operating ratio, operating profit ratio alag and operating ratio alag. Operating ratio is the expense cost ratio. Is equal to total cost of operation divided by net sales. Which is equal to COGS. ट्रेडिंग अकाउंट से हमें कौन सी कॉस्ट मिलेगी? सीओजीएस, विच इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. सीओजीएस मिल गया प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ये ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस सीओजीएस, ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस सीओजीएस, एंड देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए जो एक्सपेंस आए ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसको टोटल ले लो, वो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस. बाय नेट सेल्स. और ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू cost ratio is equal to 100% minus operating profit ratio. सिंपल वर्ड्स में ये मैं आपको दे रहा हूं इन परसेंटेज. अगर 30% ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, मतलब अगर 100 रुपीज का सेल्स है तो 30 रुपीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब 70 रुपीज ऑपरेटिंग कॉस्ट है. अगर 100 रुपीज सेल्स है एंड 30% ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, मतलब 30 रुपीज, 100 में से 30 रुपीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब 70 रुपए ऑपरेटिंग कॉस्ट रहेगा. इसलिए मैं बोलूंगा 70% इज ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो. अगर 40% ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है तो 60% ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो रहेगा. अगर 40% ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो कितना रहेगा? 60%. अगर 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो रहेगा तो 80%, राइट, कौन सा रेशियो रहेगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो. ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला, ये मैं आपको समझा रहा हूं, टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है. आगे, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द ऑपरेटिंग कॉस्ट? ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिबेंचर्स. लॉन्ग टर्म के लोन जो होते हैं उसका इंटरेस्ट छोड़ के बाकी बैंक चार्जेस वगैरह वगैरह. नेट सेल्स, सेल्स माइनस रिटर्न्स माइनस अलाउंसेस. ठीक है यहां तक. सो ये आ गया आपका, राइट, P&L के रेशियोज. ये आ गया आपके P&L के रेशियो. कौन कौन से? 4 रेशियोज P&L के, 4 रेशियोज P&L के. हाउ टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट? ध्यान देना मैं कैसे ढूंढ रहा हूं. देखो, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस इज जीपी. व्हाट इज सीओजीएस? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो
अगर नेट सेल से हम सीओजीएस माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट से अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है, वो छोड़ के बाकी फाइनेंस कॉस्ट, वो आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करते हैं एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। एंड उस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से अगर हम प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करेंगे हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। ये प्लस माइनस अगर समझ में आ गया तो ये रेशियो समझना इंपॉर्टेंट रहेगा, इजी भी रहेगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, नेट प्रॉफिट रेशियो इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, operating profit ratio is operating profit divided by net sales multiplied by 100, and operating ratio or operating cost ratio is COGS plus operating expense divided by net sales multiplied by 100. So all ratios are with respect to net sales, all ratios are with respect to net sales, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, एकदम सिंपल था। यस, अरे तुम बच्चों का पेपर कितने बजे है, जिनका पेपर है, दोस्त हुआ है पेपर, बोलो। हाँ बोलगा, हॅलो। ऍक्च्युली मी माझं 10 एक लेक्चर संपणार आहे, मग मी 12 वाजेपर्यंत फ्लॅटला चाललोय, माझं शिफ्टिंग चालू आहे सगळं, फ्लॅट शिफ्ट करतोय ना, आणि मग मी पुन्हा 12 वाजता क्लासमध्ये असेल, 1च्या पुढे माझे संध्याकाळी 8:30 पर्यंत कंटिन्युअस लेक्चर्स। हॅलो, 1 ते 8:30 रात्री कंटिन्युअस लेक्चर्स। हा हा ठीक आहे, चालेल, मी 12 वाजता असेल पण क्लास। अच्छा अच्छा, ठीक आहे, मी बोलतो तुझ्याशी मग। ओके, ध्यान देना। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। They have given you net sales, they have given you sales, net purchases, sales return, closing stock and opening stock। ध्यान देना, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए सोल्यूशन, आपके दिमाग में ट्रेडिंग अकाउंट आना चाहिए, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान देना, क्या क्या दिया है उन्होंने, नेट परचेसेस, नेट परचेसेस परचेस माइनस रिटर्न्स, ₹3 लाख, net purchases 3 lakhs to opening stock 90, then by net sales और नेट सेल्स, कैसे नेट सेल्स ढूंढोगे, सेल्स 5,40,000 माइनस रिटर्न्स 40,000, नेट सेल्स आर 5 lakhs बाय क्लोजिंग स्टॉक 50। बोलो जीपी कितना आ गया रे, जीपी
अब ये मत बोलना कि आपको जीपी ढूंढने नहीं आता, जल्दी। जीपी कितना आ गया जीपी? यस, अरे सो गए क्या सब? 5,50,000 माइनस, अरे सो गए शायद से सुबह सुबह। 5,50,000 माइनस 90 माइनस 3 लाख, 1,60,000 जीपी। बाकी चीजें नहीं दी, डायरेक्ट एक्सपेंस अगर नहीं तो कोई टेंशन नहीं। देयरफॉर राइट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। GP is 1,60,000 divided by net sales 5 lakhs divided by 100. 1,60,000 divided by 5 lakhs multiplied by 100, 32%. 32% चेक करो बराबर है क्या? 32% होना ही चाहिए, उनका गलत हो सकता है। मिल गया? What is your COGS? Your COGS is this 90,000 plus 3 lakhs, 3,90,000 minus closing stock 50,000. Your COGS is 3,40,000. Your COGS is 3,40,000. Your net sales is 5 lakhs. 5 lakhs minus 3,40,000. Your gross profit is 1,60,000. वही लिखा है। COGS 3,40,000. Net sales 5 lakhs. Gross profit is net sales minus COGS. 5 lakhs minus 3,40,000 is 1,60,000. Gross profit ratio 1,60,000 divided by 5 lakhs multiplied by 100 is equal to 32%. मतलब 100 रुपीज का सेल करोगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 32 रुपीज का होगा, मतलब 68 रुपीज का COGS होगा। सिंपल वर्ड्स में 100 रुपीज का सेल होगा, उसमें से 68 रुपीज COGS होगा, 30 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ओके ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। Compute the gross profit ratio from the following information. Sales is 5 lakhs. Gross profit ratio is 25% on cost. Solution. GP ratio is always percentage of sales. राइट, हमें क्या दिया है? जीपी रेशियो एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। फाउंडेशन वाले बोल सकते हैं, जिनका फाउंडेशन है, कोई मुझे इसका आंसर बोल सकते हो? 25% ऑन कॉस्ट मींस हाउ मच परसेंट ऑफ सेल्स? 25% ऑफ कॉस्ट मतलब कितना परसेंट होता है सेल्स का? जिनका फाउंडेशन है उनको याद आना चाहिए, कंसाइनमेंट में किया था हमने। जीपी रेशियो एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट दिया है उन्होंने 25%, कुछ भी संचना 125%, अथर्व करेक्ट 20%, 75% गलत अपूर्वा, 25% that is 1/4 of, so GP is 1/4 of cost,
that is 1/5 of sales, that is 20% of sales. एक फॉर्मूला लिख लेना, हिंट. पीपल डोंट हैव कॉमन सेंस, ये प्रॉब्लम है. m by n of the cost is equal to m upon n plus n of the selling price. This is VIMP formula. अगर कोई बोलता है 1/4 of the cost, 25% of the cost means 1/5 of the selling price, 20% of the selling price. 1/3 of the cost, 33.33% of the cost, मतलब 1/3 of the cost is 1/4 of the selling price, 25% of the selling price. अगर कोई बोलता है 2/5 of the cost price, तो मैं बोलूंगा 2 divided by 2 plus 5, 7 of the selling price. ये फॉर्मूला है. तो उन्होंने क्या लिखा है ध्यान देना, देखो 20% है. अगर उन्हें बोला है, क्या लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ द कॉस्ट ना. अगर कॉस्ट 100 रुपीज है प्लस जीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%, तो सेलिंग प्राइस इज 125. अगर 100 रुपीज कॉस्ट है, 25 रुपीज 100 का 25% कॉस्ट प्रॉफिट है. अगर 100 रुपीज कॉस्ट है, 25 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा, तो सेलिंग प्राइस 125 रहेगी. अगर आपका सेल्स 5 लाख है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना, देयरफॉर 5 lakhs मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 125, 1/5, 1 lakh. Gross profit is 1 lakh. Therefore, GP ratio, gross profit of 1 lakh divided by sales of 5 lakhs multiply by 100, 20%. लिखो, ये वाला लिखो, ये जल्दी समझ में आया. अरे मैडम मैंने सेलिंग प्राइस थोड़ी बोली थी 125, मैंने बोला था मुझे परसेंटेज चाहिए. मैंने तो प्रॉफिट एज ए परसेंट ऑफ सेल कितना, इट इज 20%. अगर देखो उन्हें हमें 25% ऑफ कॉस्ट लिखा है ना, ध्यान देना कैसे सॉल्व किया. 25% ऑन कॉस्ट लिखा है, मतलब 100 रुपीज कॉस्ट होगी तो प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 25 होगा, तो सेल कितने का रहेगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल, 125 का सेल रहेगा, विच इज 5 lakhs, विच इज 5 lakhs. So do the cross multiplication. You will get gross profit of 1 lakh. So gross profit divided by sales multiplied by 100 is gross profit ratio. लिखो ये वाला सॉल्यूशन. टेक्स्ट बुक में लिखा तो भी चल जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उधर बाजू में लिखो. आपको जैसे समझ में आता है वो लिखते चलो. ये फाउंडेशन वालों को डायरेक्टली आना चाहिए. कंसाइनमेंट में हमने ऐसे बहुत बार किया है. जीपी रेशियो परसेंटेज ऑफ सेल्स होता है. उन्होंने हमें परसेंटेज ऑफ कॉस्ट दिया, 25% ऑफ द कॉस्ट मींस 1/4 ऑफ द कॉस्ट.
मतलब 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस, 20%। आप ओरली बोल सकते हो। बट ये 12th में ऐसे लिख के नहीं चलेगा, आपको वो सॉल्व करना होगा जल्दी। नेक्स्ट, दे हैव गिवन यू क्वेश्चन नंबर 8 करना है, ध्यान देना। क्या क्वेश्चन में लिखा है? कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द डेटा। दे हैव गिवन यू सेल्स, दे हैव गिवन यू COGS, देयरफॉर GP is equal to, what is GP? Sales minus COGS. Okay, sales is 7,60,000 minus COGS 5,20,000, so 2,40,000 is GP. Gross profit ratio, gross profit is 2,40,000. Indirect expense, ग्रॉस प्रॉफिट से इंडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करोगे तो आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो लिखो सॉल्यूशन, GP is equal to sales minus COGS. Sales minus COGS, trading account. Sales is 7,60,000 minus COGS 5,20,000. Therefore 2,40,000 का GP है, 2,40,000 का GP है। What is NP? NP क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेडिंग P&L आपके सामने होना चाहिए। 2,40,000 plus 0 minus 1,20,000. So what is your NP? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, ये नेट प्रॉफिट है, बिकॉज हमने टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस किया, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग पूरा माइनस किया है। Therefore NP ratio, NP divided by net sales. $1,20,000 divided by 7,60,000 multiply by 100. $15 point something, 15.79. ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, 2-2 मार्क्स के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, कुछ नहीं इन क्वेश्चंस में दम। What is question? Gross profit is 5,60,000. Gross profit is 5,60,000. Following is the information. Calculate net profit ratio. तो ग्रॉस प्रॉफिट से अगर नेट प्रॉफिट निकलना है तो सब कुछ माइनस करो, ज्यादा सोचो मत। एडमिन एक्सपेंस माइनस करना है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन माइनस करना है, इंटरेस्ट माइनस करना है, इनकम टैक्स माइनस करना है, सेल्स 20 लाख से, सब कुछ नेट प्रॉफिट सब कुछ माइनस करने के बाद आता है। देयरफॉर नेट प्रॉफिट इज इक्वल, नेट प्रॉफिट सब कुछ माइनस करने के बाद आता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट 5,60,000 माइनस एडमिन एक्सपेंस 1,60,000 माइनस सेलिंग एक्सपेंस 1,20,000
अगर आप ये दोनों माइनस करोगे ना, ये दोनों ग्रॉस प्रॉफिट से ये दोनों माइनस करोगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। आप बोलोगे सर इंटरेस्ट नहीं माइनस करोगे, देखो फाइनेंस कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिबेंचर्स होता है। अगर कोई आपको बोलता है व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो मैं बोलूंगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिन एक्सपेंस माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस माइनस फाइनेंस कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिबेंचर्स। तो 5,60,000 माइनस 1,60,000, 4 lakhs माइनस 1,20,000, 2,80,000 इज माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर कोई मुझे बोलता है सर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलो, तो मैं बोलूंगा 2,80,000 इज माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं ढूंढना है, हमें नेट प्रॉफिट ढूंढना है, सब कुछ माइनस होने के बाद। तो ज्यादा सोचो ही मत। माइनस इंटरेस्ट माइनस इनकम टैक्स, आफ्टर टैक्स है ना, इनकम टैक्स है इसलिए आफ्टर टैक्स लिया। सो 5,60,000 माइनस 1,60,000 माइनस 1,20,000 ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स, तो ये आ गया नेट प्रॉफिट 1,40,000 का। Therefore, net profit ratio what is sales? 20 lakhs multiply by 100, one lakh 40 divided by 20 lakhs, 7%. उन्हें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला है, बिफोर टैक्स, मैंने आफ्टर टैक्स निकाला है, दे आर नॉट डिडक्टेड, उनका 2 lakhs है, उन्होंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला है, बिफोर टैक्स, मैंने आफ्टर टैक्स वाला निकाला है। ठीक है, आप लिखो स्पेसिफिकली नेट प्रॉफिट रेशियो आफ्टर टैक्स 7% आफ्टर टैक्स। अगर आपको बिफोर टैक्स ढूंढना है तो ये आपको माइनस नहीं करना है। सो 1,40,000 प्लस 60 वो 2 lakhs आएगा, 2 lakhs डिवाइडेड बाय 20 lakhs इज 10%। इस क्वेश्चन में हिंट लिख लेना, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू जीपी माइनस एडमिन एक्सपेंस minus selling and distribution expense minus interest cost except finance cost except like interest on overdraft चलेगा, interest on cash credit चलेगा, बैंक चार्जेस चलेंगे, वो चल जाएंगे, फाइनेंस कॉस्ट, डिसऑनर चार्जेस चल जाएंगे, चेक डिसऑनर होता है वो भी चल जाएगा, बट एक्सक्लूडिंग finance cost excluding interest on loans and debentures. So GP was your how much? 5,60,000. Admin expense are 1,60,000. 1,20,000 is your selling and distribution. Finance cost excluding आपके interest 80,000 की फाइनेंस कॉस्ट है, बट उसमें 80 का 80 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो वो नहीं लेना है। टू लाख 80। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर उन्होंने आपको जीपी रेशियो बोला होता तो 5,60,000 डिवाइडेड बाय 20 lakhs, आपका जीपी रेशियो आ जाता 5,60,000 डिवाइडेड बाय 20 lakhs मल्टीप्लाई बाय 100। अगर उन्हें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछा होता, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो मैं लिखता 2,80,000 डिवाइडेड बाय 20 lakhs। जेपी रेशियो हमेशा ज्यादा रहेगा, उससे थोड़ा कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो रहेगा, उससे भी कम
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहेगा, उससे भी कम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहेगा। सबसे ज्यादा कौन सा रहेगा? जीपी। उससे थोड़ा कम कौन सा रहेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। फिर उससे थोड़ा कम कौन सा रहेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो। एंड उससे भी कम कौन सा रहेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो। बहुत सिंपल चीज है, कुछ मैं हार्ड एंड फास्ट साइंस नहीं सिखा रहा। ठीक है, आगे नेक्स्ट। सर अगर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो बोल सकते हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो आपका सीओजीएस रहेगा। सीओजीएस इज, if you remember, GP is equal to sales minus COGS. GP is sales minus COGS. So how to find out COGS? COGS is equal to sales minus GP. Sales minus GP बराबर। तो what is your sales? 20 lakhs. देखो एक ही क्वेश्चन में मैं अलग अलग चीजें सिखा रहा हूं। माइनस जीपी 5,60,000, 20 lakhs minus 5,60,000, सेल्स माइनस जीपी सीओजीएस 14,40,000 का सीओजीएस। तो हाउ टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज 14,40,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,60,000 प्लस 1,20,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं लोगे क्या? अदर देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड लोन्स, बाकी फाइनेंस कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट में आएगा, बट दिस इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं लेना। So what is my operating ratio or operating cost ratio? It is COGS plus operating expense divided by sales 20 lakhs multiply by 100 multiply by 100, जो भी आंसर आएगा। देखो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, आप हर चीज ढूंढ सकते हो। इफ यू आर क्लियर अबाउट योर कंसेप्ट, आप सब चीज ढूंढ सकते हो। मैंने एक ही क्वेश्चन में जीपी रेशियो निकाल के दिखाया, मैंने आपको सॉरी यहाँ पे उस क्वेश्चन में जीपी रेशियो निकाल के दिखाया, एनपी रेशियो निकाल के दिखाया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल के दिखाया। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना आया था आपका? 2,80,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई 100 14%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14% है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट 86% होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 14,40,000 COGS प्लस 1,60,000 प्लस 1,20,000, 17,20,000 is the operating cost divided by 20 lakhs multiply by 100, 86%। देखो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 14% है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 86% है। मैंने प्रूव करके दिखाया, मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। ठीक है, 9:30 हुए। ओके